All right, Gaurav, I see you have spent over some 20 years, 2 decades in tech, right? Yes, And you have lived and worked outside India also. yes, So, hi Pratik. and Yes. now you are back. Now you are back doing an MBA with us. So, when you look back at your journey so far, which phase of your life, personal life, which phase of your life shaped you most as a human being, not as a techie, not as a technologist? That's where we want to start. Okay, so I can consider in two parts. One is like when we were in college and all, we used to visit these orphanages and old age homes. So there where you see a different life, the way people are living, other than what we are living. Normally, we always complain about our problems, but when you go to the orphanages or old age homes, you see a different view, and that's where you start realizing life is different beyond your house and beyond your college. Like it's different. So that was the first entry to that part as to how things are. Then once I went on site, that is time when you're on your own. You're on your own. You're in a different country, and you have to survive. You have to survive the winter. You have to survive like whatever challenge comes your way. There will be nobody out there to help you out. So that's where you get another glimpse of life, where you have to think twice before you step out of the house. Because normally when you're in Mumbai, quite safe everywhere, so you just can just walk out at any time of the night. But when you are into some other different country and you are into a remote place, you're not into a city like Mumbai, which has a lot of connectivity, then you have to think about it. That will I get the cab at this time, or is it really safe? So those are the points we have to think about over it, and then you realize that way back in home, it's like these are not the questions you're thinking about. Right, These right, are the right. questions you think, and also about the weather. Mumbai has a maritime equable climate, so every time it's almost like your normal climate. You have Pretty same. much winters and everything. But when you are in places where there is like the temperature which you normally read in the books, where the centigrade meets the Fahrenheit -40, you have to think about basically how you Yes, work. So that plants those are and the experiences everything. that taught me a Yeah. lot about life and survival. So Gaurav, yeah, we will definitely come back to your expat life, in US and Europe for sure. I want to understand more of your phase journey, like since childhood to the part in Mumbai and before going abroad. इस फेज की लाइफ से कुछ नया सीखा या कुछ आपको लगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है लाइफ में फ्रॉम योर चाइल्डहुड फ्रॉम योर स्कूल और मे बी फ्रॉम योर कॉलेज इफ यू कुड थिंक इज देयर एनी इंसिडेंट और एनी जर्नी अराउंड इट From say childhood part, I would say that like talking about entrepreneurship and everything. So something which was there in the mind always because my mother had one. I would in today's world we will call it as a small startup, but there it used to be like okay, she trying Tell something us, on her tell own. us, tell us more about it. That's just something which, Yeah. malab, like me So and other folks will be happy to listen to agree. that. So she basically was a housewife and she wanted to do something different. So therefore, she was like looking at what opportunities can be taken up. So she, along with her sister, my Masi, they started off with I would say, garment trading in terms of they used to buy garments from the places from Gujarat, and then they Wow, used to repackage it out here in Mumbai. So that is interesting. something which because my Masi was from Gujarat, she was settled in Gujarat. So therefore, she had that connection. So I would say supply chain has been down. So she had her Brilliant. own supply chain, and that's how they both worked on those areas. And so, from very early age, I started realizing about profits, loss. So before I could learn it in school, it's what is profit. It's that something I learned from my mother in terms of when she used Right. to prepare, the packages, and then she used to say, "Okay, fine. Agree. So now you need to deliver." So at that, I was a delivery boy. So I went and delivered This is packages. interesting. Yeah. Yeah, Pretty interesting story. So I can relate here, Gaurav. Like I've been from a business family. Like I learned a lot of things from my fathers, my chachas, the taus, and all into businesses. And this is how we learned majorly, like you, me, and other kids in India, if they are into the business family, and exactly opposite, if they are into service family, they see that kind of growth or that kind of how their parents are into services, so they're more inclined towards it.
because that's what they have seen, the stability of it, and the constraint of it, and the life of being into the services. So that's part of it. And yeah, back to your story when you were saying that, I was like more ki Masi ji is more on the supply side and mother is more on the demand side, कि ठीक है यहाँ clients मैं देख रही हूँ, वहां से Retail. supply आप Basically, she देखो. was more from retail perspective. Retail perspective, and Gaurav was acting as, okay, I will be the end-to-end guy, the delivery guy. So that's where it started off, like we packaging up and sending it out. And then slowly, like, okay, then there was a lot of demand. So then my mother realized, okay, like from Gujarat, okay, there is this particular type of sari demand, but there is more demand for Kolkata. So there's more demand for. So she then started understanding the market, where we learned about customer segmentation. So Yeah. that is something which I learned. Okay, now there is a different demand. So then people need Kolkata sari. So then Hmm. she used her connects, and so she had built a lot of networks. And then Wow. she had a connect Source with from somebody Kolkata. sourced from Kolkata. Then he used to send it. So everything was like, it was just happening around me. And though my mother was also not an MBA, neither was I at that point. So I was in school. So that way those terms were coming up. Like, okay, Yeah. there is something like, okay, we have to look at the different customers, understand what they need, and talk to the customers, understand what they're talking about. And that's where, this was a basic thing about a sari. But you can imagine every different part of India wearing different sari. So people had now something for Kolkata. They she tried to get those. So that is another parallel channel which started happening. So then yeah, then we realized, okay, now we have to expand that part because this was more like a mom and pop store, get something which is run from the houses. There's nothing, they didn't have any store at that point. We just Yeah, asset supply light. And now we can use the asset word light. It was asset light. yes, it was Running very much asset from light. home, and yeah. The Correct. economics was very clear कि बॉस इतने में आया, ठीक है, इतने में जा रहा है, डिमांड ये है, लोग Right. इतने में भी तो हमें कम खरीदते हैं. बड़ा सिंपल रहता है और क्लियर रहता है कि हाँ, हर साड़ी पे ना कमाना है. Charging profit. And why are हाँ. we doing this margin basically? Hmm. She's like, this is for the time that we are spending. So this is more about our salary that we are taking. But my father was a salaried employee. So you were like कि इतने का आ रहा है तो हम इतने का क्यों नहीं बेच रहे हैं? Is it like that? Right. Why we are not? So that was my question always. Mama, why are we doing this? Like, why are we doing that? So then she used to tell me that no, see, we are spending time. Like the way like my father was working in his office and things. So she's like, the way he's working, he's getting paid by an hour. At the end of the month, he's getting paid. But in our case, we are not getting paid. Nobody's paying us. So we have to generate that revenue for us. And this is where it comes. Because we are taking the effort. If somebody has to get this sari from Kolkata, he can call that guy. That kind of a service that we're giving, that we are understanding, okay, what type of Kolkata sarees are working here, what type of My God. Gujarat And sarees are Gaurav, working here. Gaurav, I can like visualize now. This probably would be 90s, right? The early 90s and something. Not Correct. great phone connections. No, nothing about what is happening in Only Kolkata. What is a only new fashion MTNL trend? landline. Only MTNL My landline. God, MTNL phone lines and hey, Exactly. and the transport of it कि किसी के साथ आ रहा है या you're going into the professional Exactly. transport, तो Exactly. that you have to figure it out. Impressive, very Exactly. impressive. And moreover, there was no laptops, there were computers. Computers were there, but Yeah. we didn't have at that point. We couldn't afford, so we didn't have it. So therefore, then it was more about uh, she used to खाता maintain her बनाना books. प्रॉपर, या बुक कीपिंग, Exactly. खाता रखना कि She आया did the कितने का, bookkeeping. गया कितने का जा रहा है, विच इज लाइक दोज आर द लर्निंग्स ऑफ बीइंग, फाइनेंस भी समझ में आता है, मार्केटिंग समझ में आती है, आपने बोला सेगमेंटेशन समझ में आता है, एंड पूरी सप्लाई Correct. चेन समझ में आती है. वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं बट तभी सीख जाते हैं इन अ वे. Concepts were there. Interesting, pretty interesting. Cool. So for those who are listening in right now, with me is Gaurav Raje, deeply technical, long stunts at iGate and TCS, have a on-site experience in US and Europe, right? Yeah, and today he's a part of our MBA cohort at IIT Bombay and WashU. Anything I missed? You want to add something? We are good to go. Perfect. So, Gaurav, you have seen many tech waves come and go, I assume, because I see your profile pretty early. 2000 you have been working, so I'm sure monolith आर्किटेक्चर टू अभी Yes. माइक्रो सर्विसेज वाला आर्किटेक्चर आपने देखा होगा. पहले हम Right.
प्रेम ऑन प्रेम बोलते थे, प्रेमिसेस होता था, अभी सब क्लाउड हो गया 2010-11। स्टार्टिंग में शायद एज अ कोडिंग स्टार्ट किया होगा, और अभी तो मुझे लगता नहीं है कि लास्ट कब कुछ मोर अबाउट लीडरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स। Correct. Correct. Perfect. So before we get into all these things, हम जाएंगे into the tech part. What I really want to understand is again the human side of the journey. थोड़ा तो हमें पता चला that mother business and something and how you grew up. So for now, ये balancing this growth career का companies हैं, इतना सारा pressure है, relocations आप multiple times हुए हैं, वहाँ सोचना पड़ता था, new cities, new learnings, new countries, now studies, back to the college, back to the classroom. Correct. Correct. ऑनेस्टली बताना, ठीक है, क्या सबसे हार्डेस्ट क्या ट्रेड ऑफ रहे हैं अभी तक जो आपने अपने करियर में किए हैं? देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ कि ये नहीं, ये मिला तो फिर ये। So, career trade-off in terms of like when we are like looking at these on-site opportunities when you get. So when you are at that nascent stage, we are always like, uh, we have to go now to on-site. Today things are different, but then we were have that craze that we have to go, and then we used to always look at that. Okay, if I'm not going here, then where? Is it that is there anything left for me? Because I was in a project where I could sense that there was a line. हम्म, So then you have to make a call. But then if you make a call, then you lose the good appraisal. So that's the unsaid rule always. Where you are, if you're going to, be adventurous, then you have to also bear the cost. So then ऑलवेज, that was the trade-off that you have to kind of look at it, that how you look at it. So that is where I said, okay, fine, no problem. या, I want, this is my goal. What I realized is you have to focus on your goal. There will be areas where you have to do the trade-off. Like so I या, left that particular project, fine. They said, okay, he is getting released. So the way it works, the way they settle my appraisals, fair enough. Sometimes you cannot just keep getting the best of it. Sometimes you have to just go with the brand. So you have राइट, to bear the brand. So we moved on. But then on-site came. So then I realized that, okay, now that I'm on-site, now I'm earning better. I was earning better at that point या, than what I would have earned if I had stayed in the same project and waited for my number to come in that line. So या, that is like the thought process we should have in terms of going forward. You will see those hiccups, but they are not permanent. You have to look at the long-term goal. So then that's how I told my friends also. See, I waited, but then I kept changing the gear. So it was very clear that I was looking for something, and that's how that you should actually send out that message. If you're just going to sit in one corner and wait for the world to change for you, it will never happen. You have to be the driving factor. You have to make ensure that people understand that you are going to move. You're on the move, and you want your things done however you want it done. राइट, राइट, That's where you have to keep moving. That is where I could see that was one of the या, थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं। या, यू गेट टू नो, या, या, you have to show you, yeah, hmm, yes, hmm, 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 yeah, yes, no, yeah,
Yeah. Yes, always. No, yeah, yeah. Dependency. Yeah. That's a trade-off. That's actually the trade-off always. आगे बढ़ना है तो let's go for it. Exactly. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. Totally, totally. Going interesting. This is interesting. Pretty much. So, ये क्या पूरा experience like for all the 2 decades of your experience, where do you think these large enterprises still get the technological decisions wrong? And when they are talking about all this, innovation cloud things, तो कहाँ मतलब आपको लगता है कि थोड़े से decisions गलत, I'm not taking the name, but you understand. गाड़ी की क्यों जरूरत, जस्ट जबरदस्ती कि कोई गाड़ी के लिए इंसेंटिव दे रहा है कि गाड़ी बेचो का फायदा है, क्यों स्कूटर बेच, तो गाड़ी नहीं बेचनी है, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं बजट लोगों के, यहाँ पर आ जाते हैं लोगों के कोटा, कि नहीं भैया हमारा तो कोटा है, हमें तो ये नंबर्स मंथली या एनुअल रेवेन्यू या फाइनेंशियल ईयर में, अब स्कूटर बेच तो तुम गाड़ी बेचो, गाड़ी छोड़ो हवाई जहाज। हम्म। यस। हम्म। चल रहा था। राइट। राइट। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। या। मैं राइट, मैं यहाँ थोड़ा सा मतलब कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रन एन आईटी सर्विसेज कंपनी फॉर 9-10 years। छोटे स्किल पे करी है, लेकिन मतलब ना टोटली रिलेट, एक एक लाइन द लव द एनालॉजी जो हमने यूज करी है ना, कि ये क्यों बेचना है, जब प्रेम से काम चल रहा है तो क्यों मुझे उसको जबरदस्ती क्लाउड पे, और जब उसके पास प्रेम है पूरा। आई रिमेम्बर आई हैड अ क्लाइंट लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर आउट ऑफ दिल्ली, उनका जब हम सिस्टम समझते तो हम बोलते थे क्यों क्लाउड, क्लाउड मतलब आ गया तो क्यों मूव कर रहे हो, यहाँ सारी चीजें सॉर्टेड हैं, सब कुछ है अपना पूरा, तो ऐसे ही करना चाहिए, सजेशंस एंड या। जबरदस्त सेम वो। भाई इट्स इज अ बज़ वर्ड जो क्लाउड का था, कि जबरदस्ती चलो सबको क्लाउड पे लेके जाओ बिकॉज ये बेनिफिट्स हैं। अभी एआई चल रहा है, एआई के बिना तो कोई बात या कोई 3 कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है क्लाइंट के साइड पे या कंपनी।
ट्रेडिशनल एआई जो हम बोलते थे ना, पैटर्न रिकॉग्निशन करना, इमेज रिकॉग्निशन करना, वो पुराने मेथड्स होते थे, वो क्लासिफायर्स क्या है, फीचर फीचर बनाना है। या हम्म या हम्म या थिंक अबाउट इट। होना। यस। या इस सिचुएशन क्या भी। हम्म। यस। थिकनेस आई है कुछ या। यस। यस। आई कैन रिलेट। मैं एक कैमरा लगा दूं जो मुझे रियल टाइम में बताएगा कि कब क्या हो रहा है, कितना परसेंटेज हो गया है। करो। हम्म। कमिंग बैक टू योर कर्ड वाला जो ना अभी अपना एनालॉजी, आई टोटली एग्री। एक लेट्स से द केस ऑफ अमूल और एनी बिग ब्रांड जो सिर्फ कर्ड में आते हैं और बहुत हाई स्केल पर तो जहाँ इतना हाई स्केल है, डेफिनेटली हम लोग नहीं लगाएंगे कि वो जो सुबह शाम चेक करने, दैट डेफिनेटली विल बी अ पार्ट ऑफ सम असेंबली लाइन एंड सम प्रोसेसेस जहां पर हम एआई यूज करेंगे विद द टाइम इंटरवल कि पता है हमें भाई 8 घंटे में तो अभी देखा या 8 घंटे बाद देखा कि रेडी है या नहीं है। तो वी कुड यूज सम एआई इन दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। राइट। हम्म। राइट। राइट। यस। यस। हम्म। यस। हम्म।
Hmm. Yes, yes. एग्जैक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल है राइट यू नो अबाउट दैट हम लोगों का एआई जो स्टार्टअप है इन अ वे तो उसके मल्टीपल यूज केसेस हैं एआई रिक्रूटर है सो सेम एआई रिक्रूटर अगर हम यूएस यूके में दे आर लाइक वाओ वाओ दिस इज डैम गुड बिकॉज एक तो इकोनॉमिक्स में ठीक है 7 सेंट पर मिनट अगर हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं तो एआई का बिकॉज ऑफ द टोकन्स एंड एवरीथिंग तो फॉर देम इट इज लाइक अ चीपेस्ट थिंग दिस लाइक लीव ऑन द स्केल पार्ट अगर सिर्फ एक यूनिट की भी बात करें तो भी बहुत ज़्यादा चीप है एंड वर्क करेगा नाउ कंपेयर टू इंडिया अगर मैं 7 सेंट की बात कर रहा हूँ विच इज 6 रुपीज पर मिनट विच ब्रिंग्स इट अप्रोक्सीमेटली लाइक 360 रुपीज पर आवर यहाँ लोग कहते हैं यार 250 रुपये घंटे में तो मुझे एक्चुअल रिक्रूटर मिल जाती है ह्यूमन रिक्रूटर में यहाँ पर तो दे कंपेयर विद इट ऑब्वियसली स्केल नहीं देखते कि भाई एक साथ वहाँ प्रोसेस हो जाए रिक्रूटर क्या 8 8 घंटे में ही 8 ही तो लोगों को वहां तो आपको टेंशन ही नहीं 1000 इंटरव्यूज 1 घंटे में आधे घंटे में यस तो स्केल पे आ जाती है बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ इट इंडिया में इंसान ही सस्ता है तो अगेन मैं जब एआई की तो वी हैव टू सी दैट कि ह्यूमन एचआर ह्यूमन लेबर कहाँ सस्ती है कहाँ महंगी है कहाँ पर हम एआई को ला सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एआई एट दिस मोमेंट यस एआई विल गेट चीपर एंड चीपर विद टाइम बट देन यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन जो आपने एग्जांपल दिया ना स्टार्टिंग में वाइफ्स एंड मदर अरे सुबह 2 मिनट देखना है शाम को 2 मिनट देखना है वहां एआई का सिस्टम लगाओगे तो वो कॉस्ट ही बहुत बड़ी है वो घर के लिए नहीं लगाना है या या कि वहां जो कर या 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 हम्म हम्म हम ये सब बातें हम क्लूली नाम की किसी स्टार्टअप को हम बोलेंगे भी नहीं उसके बारे में मजाक कर रहा हूँ मैं हम्म हम्म ये आया कैसे या या हम्म या 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 हम्म
Yeah, nice. Right. You have to suffer your own project and the team. Yeah, it's an environment of the team, and everything. So people are dependent, and things are. Yeah, totally got you. Yeah, yeah. Mm. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, yeah. Yes. That's the reason I मैंने अपने एक क्लाइंट को बोला था यार अपना ये डायरेक्ट डायरेक्ट बॉल टू बॉल या टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हो 360 या 240 बक्स 240 बक्स के लिए पता है इतने इंटरव्यूज आपने लिए होंगे उस बंदे को हायर करने का एक एचआर का पेरोल हो पता नहीं क्या क्या चीजें होगी उस कॉस्ट को तो आप सोच ही नहीं रहे हो अलग से एक फिक्स कॉस्ट आप अभी आप एक वेरिएबल कॉस्ट बेयर कर रहे हो विच इज 240 rupees per hour for this person whatever the person is for that recruiter or freelancer recruiter whatever. Now you're comparing it with a 360 bucks per hour for a AI solution, which doesn't bring any nuances and stuff. Come, sit in, use, do all the things, get out simply. So, ठीक है. Yes. Mm. Hmm. Hmm. There's a cost to it. There's a huge cost to it. You and me have taken interviews, and maybe in a time, yeah, there was like I was like, यार आखिरी राउंड में पहुंच जाए ना कोई तभी मुझे इन्वॉल्व करना because that hourly cost is pretty huge, pretty huge. मजा आता है बट there's a different गौरव there's a other side of it जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसको बट इतना भी नहीं कर सकते कि भाई पहला दूसरा तू आ अपना टाइम निकाल वो ऑलरेडी किसी जॉब पर है तो सिस्टम तो हमारा कहीं ना कहीं ऑलरेडी ब्रोकन था बट चल रहा था इतना बट विद कमिंग इन एआई आई एम अज्यूमिंग एंड आई सी कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है ऑल दो देर इज अदर पार्ट ऑफ इट कि एआई को यूज कर लोग फ्रॉड भी बहुत कर रहे हैं बट दस ऑलवेज जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स तो निकल कर आते हैं चलेगा ही चलेगा उसको आप रोक नहीं सकते सेम टेक्नोलॉजी का वो कंसेप्ट है ना एंट्रोपी का कंसेप्ट है ना एंट्रोपी हमेशा रहेगी आप चाहकर भी दुनिया से चोर नहीं हटा सकते आप दुनिया से टेररिस्ट नहीं हटा सकते आप दुनिया से करप्शन नहीं हटा सकते बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स पॉसिबल ही नहीं या राइट राइट एग्रीड तो या दो टेकी बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं और फैलते जा रहे हैं अपनी बातों में वी हैव ऑलरेडी बीन ऑलमोस्ट 40 minutes yeah I'll try to ask you few more questions around it one is like now you spent some years in US Europe that expert life जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको रोका था कि हम वापस आएंगे इस पर फॉर श्योर ठीक है तो मुझे जानना है कि वो जो टाइम आपने स्पेंड किया दैट नो द एक्सपेक्ट लाइफ व्हाट you still carry
in terms of your habit or learning today, consciously or unconsciously? कोई एक हैबिट आती है, मैंने देखा है जनरली जो लोग वहां रहते हैं, एक हैबिट आती है या कुछ ना कुछ तो निकल कर आता है कि नहीं यार इंडिया में आ रहे हैं लेकिन वी विल कीप फॉलोइंग दैट हैबिट और थिंकिंग। ये मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा। अरे नहीं, कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू कंटिन्यू, वी हैव टू बी लाइक प्लीज। हाँ, तो ये सोच रहे थे। हाँ, ये हाँ, हम सोसाइटी को पता नहीं, सोसाइटी के अंदर बंधे रह जाते हैं, हम सोसाइटी को लगता है कि अरे भाई साहब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। लोगों का काम है कहना, राइट। यस यस, बोल जाते हैं लेकिन उनका काम है, उनके पास समय नहीं होता ना, तो कुछ तो गॉसिप करनी है। तो क्या बात कर रहे हैं, तो बात लोगों के बारे में ही बात करेंगे, आएंगे कुछ नए आइडियाज नहीं। तो ये हमारे कल्चर का भी पार्ट है। फिर सिविक सेंस भी आता है कई बार कि नहीं, वो सिविक सेंस आएगा ही नहीं। yesterday I was talking with my wife and she was like कि यार सिविक सेंस ही नहीं। मैं कहा ये तो बिहेवियर चेंज ही नहीं होगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, रोड की, यहाँ बिहेवियर का इशू है, सिविक का है। बोले यार ये कैसे सही, तो सबका ही है, तो बहुत मुश्किल है। देयर इज अ वे, बाकियों का सही हुआ है। इट हैज टू बी फ्रॉम फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैं इंडिया में एग्जांपल दे रहा हूँ, दिख रहा था महाराष्ट्र में कोई एक गांव है या इन द नॉर्थ ईस्ट देयर आर सो मेनी गुड विलेजेस जो क्लीन है। तो क्लीननेस कैसे आती है? बिकॉज जो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी है, जो गांव की पंचायत है, दे मेक इट कि नहीं भैया सारे बच्चों को हम इन्वॉल्व करेंगे। इट गोज स्टार्ट फ्रॉम द किड्स एंड इट गोज टू द एल्डरली ऑफ इट। सो दे फॉलो अ रूल। और जब किड्स को अगर आपने वैसे ट्रेन कर दिया, बिकॉज दे विल गेट इन टू द मेन स्ट्रीम इन सम टाइम। तो वो स्कूल से, हमारे स्कूल में तो अलग ही बातें होती हैं, वहां तो सफाई होती नहीं है। जापान में जो बोलते हैं ना कि बच्चे खुद ध्यान से रखते हैं, तो वंस दे आर आउट ऑफ इट एक हैबिट बन, तो कहीं ना कहीं करिकुलम को पार्ट। या इंडिया में तो हम लोग, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यहाँ। मैंने देखा है जो इंडिया से बाहर लोग गए हैं और वापस आते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे हैबिट्स की, जब वो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या कुछ भी ऐसी जगह जा, तो दे आर पिकिंग अप वॉट एवर देयर इज अ लेफ्ट ओवर और समथिंग। दे आर डेफिनेटली सी कि कहीं डस्टबिन है या नहीं है, नहीं है तो दे विल पुट इट इन समवेयर इन देयर कार और समथिंग। दिस इज व्हाट आई हैव सीन एज वन ऑफ द हैबिट चेंज जो होती है, जो इंडियंस कॉन्शियसली तो नहीं आती, वो धीमे धीमे करके। या कि मैं बिल्कुल रिलेटेबल हो। आपको अब सीख जाते हो ना, आप कर। हम्म।
यस यस, आपके पास क्या क्या है, आप कहाँ यूज कर पाते हो, राइट, वो बहुत जरूरी हो। यू सर्वाइव। आपने वो स्किल सेट्स, आपको पता है कि यार यार कितना भी नीचे पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, निकल जाएंगे, $100 है, ठीक है। दिन क्या, मैं तो एक हफ्ते भी निकाल लेता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस आती है सिचुएशन एंड यू गेट आउट ऑफ इट। एंड कुछ सिचुएशंस ना हम जानबूझ के, एक आती है कि अपने आप से है नेचुरल, एंड कुछ सिचुएशंस आती हैं जो आप चूज करते हो, यू चूज थिंग्स इन अ वे। कार एक्सीडेंट। हम्म। यू आर अलोन, यू आर अलोन। हम्म। या। हम्म। या मैं इमेजिन भी कर पा रहा हूँ। या। हाँ हाँ। मैं गुड़गांव में जो हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे भाई कैस कर दी। सो या आई कैन अंडरस्टैंड। सेफ्टी। बचाना तो है, अपने आप को तो डिफेंड करना। ये लेवल बहुत आता है ना, आपको लगा कि यार भाई ये मोमेंट लास्ट ना हो, तो अभी यहाँ से सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल यही है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको बस जो कर सकते हो। नो तो। हम्म। अच्छा किया पुलिस को बुलाकर। हाँ, जिसकी भी गलती है, क्या हुआ, क्या होना है, कैसे होगा, पुलिस देखेगा, उनका कॉल है, वो समझ रहे हैं, एग्रेसिव। हम्म। 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 जाए। किसको करो, इस वक्त अकेला हूं मैं, कहाँ जाऊं। सब है। हम्म। कुछ होना नहीं है। वो तो आपने बाद में सोचा होगा, यार मैं वो कांच इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उससे कुछ होता गया, प्लीज सोचता है आदमी बाद में। वो तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। नई चीजें देखोगे, नए
सेम हैपेंड विद मी एवरीवन। यस, उसका एक डाउन साइड है, ऐसे निकलते हो तो याद है वो सब चीजें भी आती है, वो कंफर्ट वाली बात करिए तो ये ट्रेड ऑफ है अगर मिलना है। ऐसा नहीं है कि अगर हर किसी को निकलना चाहिए, अगर आपको कुछ बड़ा नहीं करना, आपको बाहर नहीं निकलना, आप घर पे रह रहे हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो चॉइस ये है कि नहीं, मैं माँ बाप के पास, मैं माँ के साथ घर में ही रहूंगा, मैं उस बाउंड्री तो विच इज ओके, मैं उस शहर में ही रहूँ। बहुत जरूरी है। आप रेडी होते हो दुनिया के लिए। इन लोगों को मैंने देखा है, एक ही शहर एक ही शहर एक गांव में, तो उस गांव में हिंदी में बोलते हैं अपन कि वो आप एक कुएं की मछली, वो मछली जब बड़े तालाब में तो दिक्कत है, वही मछली अगर समुंदर में जाएगी या नदी में, बहुत ही दिक्कत आएगी, सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। तो यू हैव टू स्टार्ट मूविंग इन। हम्म। या राइट। That's powerful. Cool. Gaurav, I'll push you a bit little here, right? Tell me about one thing about these long corporate tech careers in India that people romanticize a lot. But the reality is very different once you live it. ठीक है? आई हैव सीन पीपल कि अरे 20 साल XYZ कंपनी, अरे 15 साल XYZ कंपनी, दैट आप तो भाई फोड़ रहे हो। तो आपको तो दूसरी रियलिटी भी पता है ना, द ग्रास इज ग्रीनर, जो यहाँ की दुनिया को लगता है, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही बड़ी है। नाउ यू हैव टू टेल मी, या यू हैव टू टेल द ऑडियंस कि नहीं यार, दूसरी साइड भी है। हम्म। हम्म। राइट 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 राइट। या। हम्म। राइट। हम्म। हम्म। रिप्लेस हो रहे हैं। समझ गया। हो जाएगी। तो मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो एक बार कंपनी में जाते हैं, बोला यार अब तो हम ही चला रहे हैं, काम वाम करने का कुछ होता नहीं है। मैं कहा ठीक है, अभी जो एंजॉय कर रहे हो ना बढ़िया है, 1 2 साल और 5 साल कर लोगे, जब 10 12 साल के हो जाओगे और यही किया है, एंड यू हैव बीन इन कि भाई अब तो ये वाला डिपार्टमेंट तो हम ही चलाते हैं और हम ही हैं, स्विच भी नहीं किया ना, कुछ नया सीखना, डिपार्टमेंट चेंज किया, बिकॉज एक ही थॉट था कि चेंज करना पड़े तो काम करना पड़ेगा ना, यहाँ तो है ही नहीं काम, तो यहाँ रखेंगे। ऐसे मिल जाते हैं ऐसे लोग, रिलेट कर पा।
हम्म। राइट। या a lot of people a lot of people who are listening this ना right now which are in their mid career जिनकी हमने बात करी 10 to 15 या 8 to 12 वाला जो फेज इस करियर में है और इस प्रोफेशन में है, ये इतने बढ़िया इंसाइट्स गौरव ने दिए हैं जो हमारी बातें आप प्लीज मतलब अगर आप उस सिचुएशन में हो दिस इज द बेस्ट टाइम कि निकल जाओ वरना आनी है। ये कुछ फेज आता है आपका कि ठीक है आप एंजॉय कर रहे हो चिल मोड जो वर्ड बोला बट निकल जाओ एज अर्ली यू कैन एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट दैट इज गुड to try to explore the whole ocean and switch things, learn, get bit uncomfortable with new things. Be curious and become uncomfortable, try new things, get into it, learn on it. Yes, हमेशा वो चीज मत करो जो आती है वो तो आती है। कल किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार जॉब रोल्स में जब आते हो तो ये मत देखो और क्या लेकर आ रहे हो। 60-70 उसकी थी, 30-40 आपने भी तो कुछ किया था जो इधर नहीं है, तो वो भी तो लेकर आओगे आप। सो विच इज हाउ इट हैज टू बी। वही करता रहता। क्या हुआ उसका, तो कुछ आइडिया है कि कहाँ गया वो? ओके। या बेंच फॉर अ टाइम या अभी या जो एआई की वजह से जो चीजें हो रही हैं मुझे लोग कहते हैं, मैं जाता हूँ ना कभी बार मीटिंग्स में तो बोलते हैं यार अरे तुम तो ये तुम जो लेकर आ रहे हो लीडरशिप कोचिंग के लिए या यू आर ब्रिंग इट फॉर मैनेजर्स ट्रेनिंग के जो सेल्स कोचेज हैं या ये कहते हैं कि यार अब तो हमारी ही जॉब लगी। मैंने कहा देखो यार तुम्हारी जॉब तो नहीं जाएगी लेकिन अगर तुम एआई को एम्ब्रेस नहीं करोगे यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली जाएगी। और अगर आपने एम्ब्रेस कर लिया तो यू विल बी एट द टॉप ऑफ पिरामिड कि यू विल बी मेकिंग मोर मनी। इज इट एग्जैक्टली सेम प्री कंप्यूटर एरा प्री इंटरनेट एरा? बैंक में जिसने कंप्यूटर सीख लिया उसकी जॉब भी रही उसका प्रमोशंस भी हुए। ठीक है क्योंकि उसको बैंकिंग भी आती है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है उसको कंप्यूटर भी यूज करना आता है। जो लोग थे हेजिटेंट कि नहीं यार ये ले जाएगा और हमें ये सीखना नहीं है और हमें हम कर नहीं सकते, दे बिकम आउटडेटेड एंड वही लोग निकले गए। सो प्लीज। या हम्म। डिजिटल कम्युनिकेशन। यस राइट। या या थ्री थिंग्स। यस। थ्री पीस ऑफ लाइफ राइट। थ्री पीस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप में हम बोलते थे पैशन परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस क्योंकि हमें वो चाहिए होता है। लोग छोड़ देते हैं, लोगों की हालत खराब हो जाती है। 6 महीने फेजेस आते हैं एक्साइटमेंट देन डाउनफॉल फिर नीचे जाते हैं नो। डन इट मल्टीपल टाइम्स सो आई न्यू इट इन दैट वे कि दिक्कत आती है कि 90% तो फेल ही हो जाते हैं स्टार्टअप्स तो बिकॉज वो परसिस्ट नहीं कर पाते। और परसिवियरेंस तो फिर बहुत ही लंबी चीज़ है। यस। वाटर फोर्सेस हमेशा। कौन
राइट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ना, ये बोला जाता है। कुल, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, अभी आपने फादर से रिलेटेड भी एग्जांपल दिया, मैंने अपना दिया एग्जांपल। बट यू नो, हमने स्टार्टिंग में बात करी द ओजीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, योर मासी एंड योर माँ, राइट? उन्होंने वो उस टाइम पे किया एंटरप्रेन्योरशिप जब ये वर्ड भी कूल नहीं था। राइट, अभी तो कूल हो गया ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो क्वेश्चन टू यू, हैव यू सीरियसली थॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इफ यस, what excites you, and honestly what scares you? Hmm. Yeah, yeah, great. Right, right, right. Yes. Mm. Yeah, so yes, yes. So, चीज़ें आपने बोली हैं यहाँ पे गौरव, तीन चीज़ें, तीन लाइन बोलूंगा मैं। पहले तो आपने फंडिंग बोला, फिर एक वर्ड बोला आईआईटी बॉम्बे एंड वॉशू। तो दिस इज द बेस्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ आईआईटी बॉम्बे वॉशू को कि भाई स्पॉन्सर कर दो इस पॉडकास्ट को। ठीक है। दूसरा आपने बोला कि या, so I'll tell you my example. While we were doing EMBA, the first 3 months and before that, I was making six figures. I was making six figures, and then I chose again to start or join a startup like this, where since last 8 months, my salary is zero, and my actual salary is minus टक 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 बहुत सारे नंबर्स हैं उसमें। तो अब 3 हफ्ते पहले मेरी वाइफ माय वाइफ वाज लाइक, प्रभु आप ही ये सब कर सकते हो, आप ही बिना सैलरी के 18 घंटे पैशनेटली रात को 2 बजे सोने के बाद लास्ट मीटिंग के बाद सुबह 6 बजे एक मीटिंग के लिए उठ सरकेजम, एंड लाइक प्रभु चरण दो आप, प्रभु चरण दो, रियलाइज इट। क्योंकि उसने बोला यार मुझे कोई पैसे नहीं देगा, मैं 1 घंटे काम नहीं कर सकती बिना पैसे के। तो आई वाज लाइक दिस इज हाउ द पर्सनैलिटीज आर, शी कॉम्प्लीमेंट्स मी, आई कॉम्प्लीमेंट इन दैट काइंड ऑफ वे। मे बी शायद मेरा डोमेन ही ये रहा है, आई एम नॉट वर्क इन कॉर्पोरेट। मैं चाहता था कि भाई मैं भी देखूं यार ये दुनिया कैसे है, हाउ दीज 1000 करोड़ 10,000 करोड़ कंपनीज आर बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय फोक्स लाइक यू। 1 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर की कंपनीज बनती हैं और आप जैसे लोग बनाते हैं। हमेशा रहा है दिमाग में, तो करियर बहुत हुआ है, लेट्स सी कहाँ लेके जाता है और क्या करते हैं हम। But yeah, we will end this quickly. This is one of the biggest podcasts I have done in the journey so far, which is very small. क्योंकि मजेदार थी, इतनी बढ़िया कहानियां मिली हैं इसके अंदर, मुझे लगता नहीं है
हमने या मैंने और आपने, मतलब मैंने तो बहुत कम बताई हैं, आपने जो बताई हैं किसी को भी पता होगा अभी। कोहर्ट, व्हाट डू यू थिंक, किसी को पता है ये सब कहानियां कोहर्ट में? डिटेल में इतना तो नहीं पता। अभी तक हम नहीं ओपन हुए हैं, ये मुझे लगता था 12 महीने में हम नहीं ओपन हुए। जब मैं वो मीट माई मंडे का शायद मैं 10 लोगों से, एंड एक अलग कनेक्शन बन गया, क्योंकि आई हैव हर्ड देयर स्टोरी फ्रॉम फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू व्हाट दे आर नाउ, एंड थोड़ा थोड़ा बीच में मैं भी अपना तड़का लगा देता हूँ कि हाँ यार ये रिलेटेबल है, मेरी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है। पूरी कहानी तो मेरी भी कोई नहीं जानता अभी तक, इनफैक्ट मेरे साथ तो हुआ ही नहीं। अरे अलंकार वाज द फर्स्ट वन जिसने मुझको बोला था कि यार सुन, मुझे तेरी कहानी सुन, तू सबकी कहानियां सुनता है, तू मुझे अपनी बता। एंड आई वाज लाइक, ये कौन आ गया, कुल ये उल्टा। एंड वो सेशन फिर हमारा 2 ढाई घंटे चला, क्योंकि पहले तो मैंने अपनी कहानी बताई, फिर उसने बताई। सो ही इज वन ऑफ द फोक्स जिसको मेरी कहानी थोड़ी बहुत पता है, इन 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 पार्ट्स, बट आई लव दैट। अच्छा इंटरेक्शन उसके साथ, बाकियों के साथ। बिफोर वी क्लोज अप, मुझे बताओ, एमबीए असाइनमेंट्स हैं, फिक्सेस आते हैं, प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं, फैमिली को टाइम देना होता, अलग अलग मीटिंग्स आ जाती है, मुझ जैसे लोग पॉडकास्ट के लिए, गौरव एक्चुअली रिलैक्स कर, और मुझे बोलना मत बोलना कि मैं नेटफ्लिक्स, एक्चुअल रिलैक्स कैसे करते हो और क्या यूज करते हो? व्हाट इज योर वे टू गेट रिलैक्स? राइट। हम्म। गौरव भाई, आपका पता है ना, आप मुझको बोल रहे हो मैं आखिरी के 3 घंटे, लोगों को लगता है कि मैं आखिरी के 3 घंटे करता हूँ, मैं एक्चुअली में आखिरी के 3 घंटे में, बट उसके पीछे ना वो 3 हफ्ते की पैसिव थिंकिंग। आई एम वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या है। तो जो मेरी पैसिव थिंकिंग है, आई एज्यूम जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप क्या स्टार्ट कर देते हो ड्राफ्ट, तो जो भी आ रहा है वो डाल दिया है इन अ वे। राइट। हम्म। हम्म। हाँ मतलब अभी ना, राइट 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 राइट, मुझे भी कुछ 6 साल पहले ये रियलाइज हुआ है, तो मोमेंट आई गॉट टू नो कि यार मेरी 1 मिनट की कॉस्ट क्या है। 1 घंटे की तो लोग निकाल ही लेते हैं या पता होता है एक तरीके से, तो आई ना, तो मैंने बहुत सारी डिसीजन ऐसे ही छोड़ दिए कि यार मेरा टाइम खराब हो रहा है, वो अगर उससे कॉस्ट ज्यादा है 5, मैं 10 मिनट किसी चीज में, तो वो चीज अब मुझे नहीं करनी है। समवन हैज टू डू इट, या वो ऑटोमेशन में मैंने सब जगह कार्ड ऑटो में, मैं चूज ही नहीं करता कि मुझे किस फ्लाइट से जाना है, मैं चूज ही नहीं करता कोई ऐप। मतलब इट हैज टू बी, अगर मैंने ऐप खोली है तो विद इन 3 क्लिक्स मैं ऑर्डर कर दूं वो चीज, मुझे कंपैरिजन करना ही नहीं है प्राइस का, क्योंकि वो प्राइस का कंपैरिजन पे जो मुझे बेचेगा उससे ज्यादा मेरी कॉस्ट। यस आई हैव फ्री टाइम, लोग फ्री में करते हैं, बट जो मेरे आवर्स हैं वर्किंग आवर्स में, वो मेरे वर्किंग आवर्स के बाद, तभी मैं बहुत सारी चीजें, और कि ये कम्युनिटी चल रही है, कि ये पॉडकास्ट है और लोगों से मिल रहा हूं, तो आई थिंक दैट्स टाइम इज वर्थ इट। मतलब जस्ट दिस इज माय ओपिनियन, पीपल डिफर फ्रॉम इट, कि नहीं यार, कि जहां बच रहा है बचाना चाहिए, बैलेंस इट। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ आपने बोला था ना स्टार्टिंग, सम ट्रेड ऑफ के बाद, टाइम और मनी। आप टाइम और मनी का, अच्छा अभी टाइम नहीं है तो भी आ रहा है, वो कितनी भी महंगी मिल रही है फ्लाइट, कितनी भी मिल रही है, चले जाओ। टाइम है, वी विल टेक अ बैक एंड सी कि भैया क्या ऑप्शंस है हमारे पास। हम्म। हम्म। ना यार, नहीं ये, हम्म। या। हम्म। कौन?
कंट्रोवर्शियल हो जाएगा गौरव, ये आखिरी वाला तो काटना पड़ेगा। लोग कहेंगे यार हमें, हाँ हम ही पिंग करते हैं सबसे जल्दी, हम ही एक्टिव है यार, गौरव ने क्या बोल दिया, ये गौरव और प्रतीक क्या बोल, किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं गौरव और प्रतीक, हम ही लोग हैं। हम्म, इज अ टूल, या यूज तो करोगे। मतलब पहले आपका मैनुअल सॉ था, अब वो इलेक्ट्रिक वाला है, तो आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, सॉर्टिंग यूज। इतने नॉइजेस हैं लाइफ में। 2 घंटा लग। तो ये आप कैलेंडर बनाते हो, सब चीजें रख, अब बताओ रिलैक्स कैसे करते हो, क्या है मतलब, घूमना है, रनिंग है, नेटफ्लिक्स, वो तो बोलना ही नहीं है, नेटफ्लिक्स और क्या, व्हाट यू लाइक, व्हाट्स योर हॉबीज बेसिकली। नाइस, ये बात नहीं। काम है, ऑफिस है, फैमिली है, फैमिली में you have to give time to kids, to wife, sometimes it's a relaxing way, but sometimes फैमिली को देना रिलैक्सिंग नहीं होता कई बार, देन यू नीड योर ओन टाइम, तो जहाँ पर आप रिलैक्स कर पाते हो, यू नीड सम स्पेस इन अ वे। नाइस, सो फोटोग्राफी। यप यप। Lucky Mumbai guys, you have a beach, you could walk. मैं तो स्क्वैश और बैडमिंटन, एंड विद बैडमिंटन या गौरव इज नाउ प्रो बैडमिंटन। हमारे हमारे कोर्ट में सबसे पहले गौरव इज लाइक हु ऑल आर इन, मैं हमेशा रहता उसमें। I've been a part of this sports group always, but last I think 3 and 4 months, it's a complete no. I'm just no, not time से भी ज़्यादा नहीं. It's more about my knees. So I'm not playing anything since last 3 to 4 months. I want to rest my knees to recover better. प्लस टाइम बच जा रहा है बिकॉज खेल नहीं रहा हूँ, तो फिर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उस टाइम को जो मैं कर सकता हूँ इन अ वे। तो इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ इट इन अ वे, तो दोनों चीज़ें। आप बैडमिंटन में, आप क्रिकेट में गिर गिर के बॉल पकड़ते हो। मैंने कसम खाई, जब भी हमारा मैच होगा, पहला बंदा जो मैं अपनी टीम में रखूंगा वो गौरव रहे। मैं ये कमिटमेंट कहाँ से आ जाता है आपके साथ, मैं बैडमिंटन का भी पार्टनर बनने वाला हूँ और क्रिकेट में तो आप मेरी टीम में। Nice, nice, nice talking to you, Gaurav. So many insights, so many stories. Thanks for the time. And the folks who are listening this, definitely you will get some insights around the career, the tech, how to be moving in these big companies, and what to do, what not to do, and some advices around life and decisions making. Thank you again, Gaurav.